Hello students, how are you all? Hope you all are studying for your PT1 examination. Here I am with chemistry chapter number 3 atoms and molecules revision chapter. Now I'm covering from NCERT and I would ask you all, even I will request you all to thoroughly go through NCERT for chemistry and biology. Now topics to be covered are here: laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, atoms and molecules and their symbol, atomic mass, gram atomic mass, iron, molecule, formula of simple and molecular compounds. That much I will be covering. Molecular mass, formula, unit mass and mole concept will be covered later on as it is not coming in our examination. If we talk about the introduction, then there are philosophers, that is like ancient Greek philosophers, who have always wondered about an unseen and unknown form of matter. They have always worried like what it is there. Now the idea of divisibility of matter was long back came in India around 500 BC. Indian philosophers like Maharshi Kannad postulated that on dividing matter, that he named as Padarth because they worked in Sanskrit. So on dividing matter or Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Now, it was studied with the help of law. That law was law of chemical combination, which says that two or more elements combine together to form new compound and is governed by certain law. हर एक चीज़ के लिए एक लॉ, एक नियम होता है. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक नए सब्सटेंस को बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस में एक लॉ वर्क करता है जिसको कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Now coming to types of law of chemical combination. Law of conservation of mass, law of constant proportion. These are in our syllabus. If we talk about the very first law, that is law of conservation of mass, it was given by Lavoisier, Lavoisier in 1744. This law states that mass can neither be created nor can be destroyed in a chemical reaction. Like energy cannot be created nor can be destroyed. Similarly, मास या वजन जो होता है उसको ना हम बना सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा सेम रहता है. To understand this, we can have a look at the activity 3.1 from our NCERT textbook, in which we have to take a set of X and Y chemicals. X, copper sulfate or barium chloride, lead nitrate. Y, sodium carbonate, sodium sulfate or sodium chloride. And we have to prepare separately 5% solution of any one pair of substance listed in like X or Y. X या Y में से एक को 5% सॉल्यूशन बनाना है. फिर आपको X या Y में से किसी एक को कॉनिकल फ्लास्क में लेना है और दूसरे को इग्निशन ट्यूब में. ना इग्निशन ट्यूब एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इन्वर्ट कर सकते हैं. जब आप इसको करते हो तो उसको हैंग करना रहता है इग्निशन ट्यूब को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक थ्रेड की हेल्प से, ताकि वो पूरी तरह से गिरे नहीं. इसके बाद आप उसके पहले आपको क्या करना है, इग्निशन ट्यूब का वे करना है केमिकल्स के साथ में और कॉनिकल फ्लास्क का वे करना है केमिकल्स के साथ में. इनको वे करने के बाद जब आप अंदर एक दूसरे के अंदर डालोगे, लाइक कॉनिकल फ्लास्क में स्ट्रिंग की हेल्प से इग्निशन ट्यूब को डालोगे और फिर वे करोगे, तो मिक्स करने के बाद वे करोगे तो you'll ऑब्जर्व कि जो मास इन दोनों को ऐड करने से पहले था वही मास इन दोनों को ऐड करने के बाद डबल हो गया है. Now, law of conservation of mass says that energy cannot be created nor can be destroyed, can be proved with the help of that activity. Then coming to second law, that is law of constant proportion or law of definite proportion, which was given by J. Pross in 1797. Now this law states that in a chemical substance, elements all are always present in a definite proportion by their mass. हमेशा वो proportion में present होते हैं, इनके अंदर कोई changes नहीं आते हैं. For example, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही प्रेजेंट रहेंगे. सिमिलरली जब हम उसको अगर हम बात करेंगे कि इनको 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करना है तो इसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन का रहेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन का हमेशा रहता है. सिमिलरली अमोनिया के अंदर nitrogen and hydrogen is present in the ratio of 14:3, that is nitrogen is 14 and hydrogen is 3. Now this method is best to know
to understand the law of constant proportion. Like A plus B will form AB with the same proportion. Now there was a British chemist John Dalton who provided the basic theory about the nature of element matters कि मैटर क्या है. तो डाल्टन ने क्या करा, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के आइडिया को अपने थ्योरी के अंदर लिया और अपनी फिलॉसफी को प्रूव किया. उन्होंने एटम नाम दिया इसको, जिसको ग्रीक वे में था और जिसका नाम मतलब होता है स्मॉलर पार्टिकल या स्मॉल सेल्स. उसने अपनी थ्योरी को बेस करा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे. According to his theory, that is Dalton's atomic theory, law of conservation of mass and law of definite proportion can be understood easily. Now the postulates of Dalton's atomic theory are as follows. According to Dalton's theory, जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो स्मॉलर पार्टिकल्स से बने होते हैं जिनको एटम्स कहा जाता है. ठीक है. सबसे पहला क्या पॉइंट है पोस्टुलेट का कि जितने भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से बने जिनको एटम्स कहा जाता है. एटम्स जो है वो हमेशा इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जिनको ना हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में. केमिकल रिएक्शन आई टोल्ड यू, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक न्यू एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं. थर्ड पॉइंट, एटम्स जो रहते हैं गिवन एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं कि मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. लाइक हाइड्रोजन जो रहेगा उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी ऐड होने के बाद. ठीक है. और नाइट्रोजन है तो सेम रहेगी. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे उनकी मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी. लाइक हाइड्रोजन जहाँ भी रहेगा वो सेम रहेगा लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों अलग अलग रहेंगे. जब एटम कंबाइन होता है होल रेशियो के अंदर तो वो कंपाउंड को फॉर्म करता है. लास्ट पोस्टुलेट, जो रिलेटिव नंबर या काइंड्स ऑफ एटम्स रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है गिवन कंपाउंड में. Our next topic is atoms. Now coming to the introduction of atoms. We have observed that a mission building, एक अच्छी strong building wall को हमने देखा है. ये जो walls रहती है रूम की, ये एक बिल्डिंग को फॉर्म करने में हेल्प करती है. ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं ये ह्यूज बिल्डिंग को फॉर्म करते हैं और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहा जाता है एटम्स. इफ़ वी टॉक अबाउट ये जो एंटी हिल या स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, ये भी क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है जो कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को फॉर्म करने में हेल्प करता है. सो वी कैन से मैटर एटम इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक. इफ़ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एटम, देन एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. एटम्स का साइज जो रहता है उनके एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए नैनोमीटर यूज़ करा जाता है. 1 नैनोमीटर इजकल्स टू 1/10⁹ मीटर होता है. तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 10⁹ नैनोमीटर. तो अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की तो वो इंटू 10⁻⁴ के अकॉर्डिंग वर्क करता है. यहाँ एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन का जिसमें एटॉमिक रेडियाई कितनी 1 × 10⁻⁻10 मीटर. Relative size या relative atomic radii are given over here. All these things are in power but by mistake they are written together. रेडियाई अगर मीटर में बात करते 10⁻⁻10 तो दैट विल बी एटम ऑफ हाइड्रोजन. 10⁻⁻9 तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. 10⁻⁻8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. 10⁻⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड. 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻1 विल बी वाटरमेलन. ये इनकी रेडियाई होती जो हेल्प करती है हमको इनके बारे में फर्दर स्टडी करने में. नाउ there are certain modern techniques that helps us to produce a magnifying image of a surface of an atom. Here is an image of the surface of silicon जिसके अंदर red molecules हैं, orange, yellow, white and purple molecules are there. ये आपको हेल्प करेंगे बताने में कि एक मॉलिक्यूल की सरफेस किस तरह से बनी होती है. रेड मॉलिक्यूल्स आपको बताएंगे कि दिस इज़ द structure. So many atoms combine together in an element to form its surface. Now there are certain symbols of the atoms. Like symbols of some elements are proposed by Dalton. Hydrogen, phosphorus, copper, gold, carbon, sulfur, lead, platina, oxygen, iron, silver and mercury are given over here. These are the symbols which were given in ancient time by Dalton for the reference of the elements. Now in the beginning what happened, it was very much difficult
कि एक एटम एलिमेंट के एटम के बारे में हम पता कर सकें उसके नाम से, तो इसीलिए उन्होंने उनको सिम्बॉल्स दी, लेकिन सिम्बॉल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड गिविंग देम नेम. लाइक कॉपर वाज टेकन फ्रॉम सिप्रस, जो एक स्पेसिफिक कलर के नेम से लिया गया था. सिमिलरली गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है येलो. और वहीं पे एनसीईआरटी में इफ यू रीड यूल कम टू नो कि किस तरह से पोटेशियम एंड सोडियम को लिया गया था. सोडियम वाज टेकन फ्रॉम नाइट्रियम एंड पोटेशियम वाज टेकन पोट्रियम. This you can study from your NCERT book. If we talk about nowadays this time, then we are following International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC naming, which approves the names of the element and which is followed worldwide. इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल अपर केस में लिखा जाता है और सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर्स या स्मॉल केस में यह लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट. तो हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम का Al है तो स्मॉल एल आ जाएगा, कोबाल्ट में C के बाद O स्मॉल आ जाएगा. पर कुछ सिम्बॉल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट लेटर के साथ में थर्ड लेटर का यूज़ करा जाता है, उसमें भी उनको स्मॉल ही लिखा जाता है. क्लोरीन का C विल बी कैपिटल एंड L विल बी स्मॉल विच विल बी द थर्ड लेटर. सिमिलरली जिंक ऑल्सो. There are certain other symbols which I told you from NCERT, you can go through them कि जो एलिमेंट्स के जर्मन, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन में दिए हुए हैं. आयरन को Fe कहा जाता है जिसका लैटिन में नेम होता है फेरम. सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है एंड पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है. तो हर एक एलिमेंट जो रहता है वो एक यूनिक सिंबल को बताता है अपने नेम के अकॉर्डिंग. Here is the above table given to you जिसके अंदर एलिमेंट और उनके सिम्बॉल्स हैं. दिस इज टेबल 3.1 from our NCERT टेक्स्ट बुक. You can go through it. Then coming to atomic mass. Now Dalton के according to his theory, he suggested कि elements जो रहते हैं उनके atomic mass के बेस पे अगर स्टडी करा जाए तो it will be easier. तो उसने अपनी जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की थ्योरी उसके थ्रू उसने इजीली एक्सप्लेन करा है कि एटॉमिक मास क्या होता है. what he said कि जो एटॉमिक मास होता हैगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन 12 से. बिफोर इट वाज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन 1/16, बट ऑक्सीजन वाज नॉट द कांस्टेंट वन. सो इट वाज टेकन कि ऐसे एटॉमिक नंबर का यूज़ करा जाए जो कि उसकी वैलेंसी हमेशा 4 और फिक्स्ड हो. तो एटम ऑफ कार्बन 12 वाज टेकन. नाउ कार्बन 12 आइसोटोप जो वो कार्बन डेटिंग वगैरह के काम में होता है. आइसोटोप और आइसोबार टू थिंग्स आर देयर. आइसोटोप वो रहता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास बदल जाता है. एटॉमिक नंबर यानी वो नंबर जो हेल्प करता है एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में, और एटॉमिक मास होता है उनका वेट. इफ़ वी टॉक अबाउट एटॉमिक मास, तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो रहती है वो मास ऑफ 1/12 कार्बन 12 के एटॉमिक मास के बराबर होती है, जिसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg माना जाता है. एटॉमिक मास यूनिट का एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन यू that you can see even from your textbooks also. With the example I'll show you. Now imagine that a fruit seller is there which is selling a fruit, and that is watermelon. Now he is not having a weighing machine. So sorry, he is not having weight for it. So what he'll do, he'll ask watermelon, what he'll do, he'll take the watermelon and cut it in 12 units या 12 pieces में उसको cut करेगा. ये जो 12 पीस इक्वल पीसेस रहेंगे इसमें से एक पीस को वो रिलेटिव मास मान के वाटरमेलन का वे करने में हेल्प करेगा. हर एक फ्रूट को वो उसके रिलेटिव फ्रूट एटॉमिक मास के थ्रू उसको कैलकुलेट करेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास वेट नहीं है. तो व्हाट विल डू, वाटरमेलन को लेगा एग्जैक्ट उसके 12 पीसेस सेम वेट के कट करेगा, उसमें से एक पीस को वो वे करने के लिए यूज़ कर लेगा. Here is the list of atomic masses of few of the elements. This is taken from our NCERT book. Thus you need to learn hydrogen 1, carbon 12. If you are not having unit also, then no problem. Only atomic mass will work. Nitrogen 14, oxygen 16, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chlorine 35.5 and calcium 40. Now how this mass came, that I'll teach you in our last PPT. Coming to what is a molecule, then a molecule basically is the smallest particle of an element or a compound जो capable होता है अपने independent existence को show करने में और उसकी सब properties को show करने में.
So basically, a molecule in general is a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by a force of attraction. ना एटम्स जो रहते हैं ये सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट्स के वो ज्वाइन होकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो रहेगा वो हमेशा सेम टाइम के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, वहीं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम को कंटेन करेगा. एग्जाम्पल, अगर आर्गन और हीलियम की बात करते हैं तो आर्गन जो रहेंगे उसके एक टाइप के एटम से बना है, हीलियम जो है वो एक टाइप के एटम से बना है, पर यही नॉन मेटल के केस में डिफर कर जाता है. लाइक ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक होता है, दैट इज O2. दिस इज अ सबस्क्रिप्ट बट बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन पैरेलल. अगर हम ऑक्सीजन को O2 की जगह O3 लिख देते हैं तो वो ओजोन बन जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़र कर जाती हैं. यही डिफरेंस आता है एक पर्टिकुलर एटम के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने में. हर एक मॉलिक्यूल के अपना हर एक एटम या एलिमेंट का अपना फिक्स्ड एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. Now here are the atomicity of some of the non-metals, as non-metals have different atomicities. Argon monoatomic, helium monoatomic, oxygen diatomic, hydrogen, nitrogen, chlorine diatomic, phosphorus tetraatomic and sulfur polyatomic. We are saying polyatomic because sulfur का fixed नहीं होता है. Now अब अगर हम बात कर, that was about molecule of elements. Now it is about molecules of compound. तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. कंपाउंड वाटर जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, H2 है, ऑक्सीजन के कंबाइन होकर अपना रेशियो बनाता है 1:8. हाउ? That will require little time to understand. In fourth chapter it will be exactly clear to you all. Coming to ammonia, that is NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं 14:3 में. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन. There is an activity which is saying, now this is activity 3.2, which is asking her to find out the ratio of the number of atoms of various compound. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, वाटर एंड अमोनिया दे तो रखा है रेशियो, लेकिन आता कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रेशियो बाय मास 1:8 के थ्रू कैलकुलेट करा जाता है 1/12 का. तो ये फार्मूला अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट. नाउ दैट वाज द फार्मूला. उसमें क्या है, एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो रहता है वो दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो प्रमोशन रहता है उनका ऑलवेज प्रोपोर्शन इज सेम. अगर हम बात करें 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में वाटर बनाने के लिए, तो उसका जो फार्मूला रहता है 8/16 को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 1:8. This is known as law of constant proportion. Coming to what is an ion. So basically compounds are composed of metals and non-metals जो कि चार्ज स्पीशीज़ को कंटेन करते हैं, इन्हें कहा जाता है आयंस. आयंस जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनायन एंड कैटायन. एनायन पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, कैटायन नेगेटिवली चार्ज. नाउ द थिंग कम्स कि हमें पता कैसे चलता है कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव. तो जो आयन अपना एक एटम या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है वो पॉजिटिव चार्ज बनता है और जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज को गेन करता है. Importance of formulas in chemistry. This is an extra part to understand what exactly formulas are. So basically there was a time जब पीरियोडिक टेबल को रेफ़र करा जाता था सिम्बॉल्स के लिए. ना ये जो सिम्बॉल्स थे ये वर्ल्ड वाइड सेम थे. अगर इनके अंदर ज़रा सा भी डिफरेंस आ जाएगा तो एक फार्मूला बदल जाएगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंटेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. स्पेशली मेडिसिन्स, आर क्रीम्स, आर डिओड्रेंट्स, इन सब का फार्मूला चेंज हो जाते हैं. तो इसलिए उनको सिम्बॉल्स को रिप्रेजेंट करा इसलिए एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाता है सिम्बॉल्स के थ्रू. लाइक हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, कैल्शियम को Cl एंड सो ऑन. There are three types of chemical formulas in the chemistry: molecular formula, empirical formula and structural formula. Molecular formula हमें बताता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक एलिमेंट के कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए. वहीं पे empirical formula हमें बताता है कि कितने रेशियो में एलिमेंट्स प्रेजेंट है कंपाउंड को बनाने के लिए. एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड रहेंगे एक पर्टिकुलर केमिकल में. ना केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें वैलेंसी या चार्जेस
का वो बैलेंस करना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ वैलेंसी, दैट आई विल टीच यू इन आवर लास्ट टॉपिक। अब ये जो कंपाउंड होते हैं ये हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल को कंटेन अगर करते हैं तो उनके सिंबल्स में मेटल को पहले लिखा जाता है, और अगर नॉन मेटल होते हैं तो नॉन मेटल में जो सबसे पहला नॉन मेटल आता है उसे लिखा जाता है। कंपाउंड्स जो रहते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयंस की फॉर्मेशन करते हैं ना। ये जो आयंस रहते हैं इनको अगर पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट हैं तो इनको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, लाइक NaOH है तो अगर यहीं पे OH2 रहेगा तो NaOH और OH को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। Some common simple and polyatomic ions are shown over here with their names and symbols. You can have a look at them. This is the table from our NCERT textbook 3.6. Coming to the formula of simple compounds. Now जो simplest compound रहते हैं वो दो अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं और उनको बाइनरी कंपाउंड्स भी बोला जाता है। इनकी वैलेंसीज जो है वो टेबल 3.6 में गिवन है। जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। सिमिलरली H2O बनाना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। 2 को H में मल्टीप्लाई कर दिया, O को 1 में कर दिया, दैट विल फॉर्म H2O। दीज आर द एग्जाम्पल्स। इनको लिखने का पैटर्न होता है एलिमेंट या आयन का नाम, इसका सिंबल, चार्ज एंड फार्मूला। एलिमेंट या आयन क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड, सिंबल है Mg&S, चार्जेस 2+2-, ये कहाँ से है, आई विल गाइड यू। फार्मूला क्या हो जाए Mg2S2 ना, दोनों में 2 है तो हम उसको MgS भी लिख सकते हैं। अब केमिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसकी कंपोजिशन की। केमिकल फार्मूला जो रहता है वो सिंबल्स के थ्रू होता है और वैलेंसीज के थ्रू। नाउ वैलेंसी क्या होती है, एक कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी होती है एलिमेंट की। इसको हमेशा यूज़ करा जाता है फाइंड करने में कि एलिमेंट के एटम्स जो है वो किस तरह से दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होकर केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं। जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट रहती है एटम की वो हम हैंड्स के थ्रू भी समझ सकते हैं, लाइक हमारे हाथ जो रहते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट, तो वैलेंसीज को डिवाइड करा गया 3 फॉर्म में, मोनोवैलेंट एंड कोवैलेंट एंड मोनो, डाई एंड टेट्रावैलेंट। तो एनायन कैटायन, आई टोल्ड यू एनायन जो रहता है नेगेटिवली चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोडियम तो उसकी वैलेंसी 1 होती है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन आयन पे। वहीं मोनोवैलेंट एनायन की बात करते हैं -1 में तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयोडीन, सॉरी क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयन माइनस में आ जाते हैं। डाइवैलेंट में 2-2+ लिखा जाता है। टेट्रा में 3+3- लिखा जाता है। ये एक तरीका होता है बताने का। यार नाइट्रेट आयन में N3- आएगा, मैंने यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा गलत लगा दिया है। Now how to balance valencies of a compound। तो ये क्या है, ये एक एटम है। इस एटम का सबसे सेंटर पार्ट जो है न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और उसके आसपास न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिटल शेल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल या फिर एनर्जी शेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी में भी सेल देखा होगा तो न्यूक्लियस और उसके बाहर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यहाँ पे एनर्जी शेल्स होते हैं ना। इसमें जो शेल्स होते हैं KLMN करके उनको डिनोट करा जाता है। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल जो रहेगा वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं करेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से, तो जो एटॉमिक नंबर होता है एक एलिमेंट का वो डिसाइड करता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास का शेल रहता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आते हैं, वो डाइवेलेंट होता है। उसके बाद 8 से ज़्यादा नहीं आते हैं, 2, 8, 8, 18 एंड 32 के अकॉर्डिंग होता है उसको। तो लास्ट वाला जो भी शेल रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। उस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारी वैलेंसी को बताने में हेल्प करते हैं। हियर इज़ द एग्जाम्पल। जो ऊपर ये रेड डॉट दिख रहा है वो आप देख सकते हो, एक एटम का चार्ज है, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो शेल चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो शेल नेगेटिव में, यानी जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो आप क्या हो जाओगे, कम हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो आप ज़्यादा हो जाओगे। ये आप देख सकते हो।
यहाँ पे एग्जाम्पल में सोडियम और क्लोरीन का लिया है कि क्लोरीन के अंदर एनर्जी ज़्यादा थी तो उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम के पास एनर्जी ज़्यादा थी तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। जब क्लोरीन को उसने दिया तो क्या हो गया, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, और सोडियम के भी 8 कंप्लीट हो गए और उसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। हर एक कंपाउंड को कंबाइन होने के लिए ज़रूरी कि वो अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करे। 2 या 8 होना ज़रूरी है। Now, to understand this, we can take the example of humans and octopus. Human beings have 2 arms while octopus has 8 arms. तो ऑक्टोपस के 8 आर्म्स हैं तो वो कितने ह्यूमंस को दोनों हाथ से होल्ड कर सकता है? डेफिनेटली 4 को। ऑक्टोपस को O से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? OH4। यहाँ O यानी सिंगल ऑक्टोपस 1, H4 यानी 4 ह्यूमंस को होल्ड कर रखा है। Here is the name of the element and all these things from chapter number 4. I already told you in our previous chapter also, topic also, कि किस तरह से आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन नंबर है, कितने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, वो पता चल जाएगा। दैट की एलिमेंट शेल विच आई टोल्ड यू, वो पता चल जाएगा। अगर बात करते हैं वैलेंसी की, तो जो लास्ट शेल के अंदर कितनी वैलेंसी है वो डिटरमाइन कराती है। वैलेंसी हमेशा 0 to 4 बढ़ती है, देन 4 के बाद से 3 2 1 0 में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है फॉस्फोरस, जिसकी वैलेंसी या तो 3 या 5 होती है, डिपेंडिंग वो कहाँ से उसको आपने डिराइव करा है। नाउ फार्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, उनको कंस्ट्रक्ट करने का एक पैटर्न। जब भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड का, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की वैलेंसी को लिखा जाता है रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ में। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो वैलेंसी की होती है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड को। वैलेंसी या चार्जेस जो रहेंगे वो आयंस के ऊपर हमेशा बैलेंस रहते हैं। कंपाउंड जो रहता है वो मेटल या नॉन मेटल के से बना हुआ रहता है, तो मेटल को पहले लिखते हैं। कंपाउंड जो रहेगा जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन रहेंगे तो उसमें ब्रैकेट का यूज़ करा जाता है। हियर इज द एग्जांपल फॉर द ब्रैकेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH, Cu2 प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो CuOH को ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर OH को हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो वो ऐसा लगेगा कि वो बाहर की तरफ भी है। This was about the chapter. I know some difficulties are there, but you will come to know writing a formula need more and more practice. This was about the revision. Study well, prepare well, and if you have any doubt, you can clear your doubt in on our Campus Care app.